So class, today we need to start from the second method and the second part of the second method, which means we need to look at the sales value, but the sales value at the end. Before this one we talked about the sales value or the sales price at split off. Now today we will be talking about the sales value at the end minus any further processing cost. Possible है कि split off पे एक product ready नहीं to be sold. You can process it further, or you can sell it now, but you can also process it further. Okay? यहाँ पे decision making involved होती है कि whether to sell it now or to sell it after further processing. ये काम हम पहले कर चुके हैं in the previous course. So let's not talk about that. अब हमने ये decide करना है कि अगर एक मैं further process करके बेच रहा हूँ और दूसरा मैं further process नहीं करता, तो फिर उस केस में selling price को किस तरह लूँगा? तो फिर मैं लूँगा selling price minus further processing cost. I would arrive at this price and then I would do the relative prices और फिर उसके बाद उसको solve करूँगा. So let's have a look at this data. Let's say we have a company and they are making 4 products. P1, Q1, R and S, 4 products. The units made for P1 are 600, for Q1 400, for R 500, S 600. Units sold. I sell 400 units, S 450 units, selling price per unit is 7 and 10. But this P1 and Q1 can be further processed. And now they will be called as P2 and Q2. ठीक है? इसको further process मैं कर सकता हूँ और ये further process होके P2 बन जाएगा और Q2 बन जाएगा. जब ये further process होगा, obviously there will be a further cost involved. इसको और process करूँगा तो कुछ और cost involved होगी. अब जो further processing cost इसकी involved है, वो आपको बता देता हूँ कि वो क्या है, and then we will start off with the question. So we have 2 products, P1 and Q1, and this P1 actually would be converted into P2, and Q1 after further processing would become Q2. हम कितने units process कर रहे हैं? 600 and 400. Okay. So the units which I am processing are 600 for P1, which will be converted into P2, and 400 of Q1, which will be converted into Q2. अब इसका कितने units आप actually sell कर रहे हैं? Units sold. So you are selling 600 units of P2, whereas 300 units of Q2. ठीक है? ये भी हो गया. फिर further processing आप करते हैं. So what is the cost of further processing? The cost of this further processing to convert P1 into P2 is rupees 1000. And the cost of further processing of converting Q1 into Q2 is 2500. ये भी clear हो गया. अब जब ये further process कर दूं, then what is the final sales price? The final sales price of P2 is rupees 10, and for Q2 it is rupees 20. Okay? Clear हो गया? सारा डेटा क्लियर है आपको? डेटा इज ऑल क्लियर. कंफ्यूजन तो कोई नहीं है. डेटा इज क्लियर करना. ठीक है? नाउ लेट्स सॉल्व. अब हमने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि अगर मैं जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट आपको गिवन है. जॉइंट कॉस्ट इज या कॉमन प्रोसेस कॉस्ट इज 16000. 4 products and the common cost is 16,000. ये मैंने लिखना भूल गया. 16,000. So now you need to allocate 16,000. एक चीज तो शो होगी. 16,000 पे allocate करना है कितने यूनिट्स के ऊपर? P, Q, R, S. So we actually have 4 products. यहाँ पर हमने 2 products थे ना? अब इसके बजाय 4 products. So let's change the diagram. Let's change this diagram a little bit, and we say now we have byproduct को बिल्कुल हटा देते हैं. No byproduct right now. Now we have 4 products instead of 2. We have P1, we have Q1, we have R, and we have S. 4 products बन गए थे. लेकिन इस 4 में से P1 और Q1 को further process करेंगे. So when I process it further, it is converted into P2. This is converted into Q2. Okay? यहाँ पे जो cost है, ये कितनी है? 16,000. The further processing from P1 to P2 is 1000. Okay, 1000.
And the further processing from Q1 to Q2 is 2500. ये भी क्लियर हो गई? ये भी क्लियर हो गई? अब इससे पिछला क्वेश्चन आपको याद है जब हम लोगों ने अपॉर्चनमेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वाली, हमने क्या किया था? हमने सेल्स फाइंड आउट की थी ना उसकी कि सेल्स कितनी। सो लेट्स फाइंड आउट द सेल्स कितनी होगी। अगर दिस इज योर डेटा एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सेल्स, सो व्हाट व्हिच यूनिट्स आर यू एक्चुअली सेलिंग? आप कौन कौन सी यूनिट्स इसमें बेच रहे हैं? P2, P2, Q2, R and S. P1, P2 you are not selling. आप उसको further process करें। ये बात भी clear होगी। So these are the 1, 2, 3, 4 units. R, how many units you are selling? 400. At what price? 7. So 400 into 7. कितना हो गया? 2800. 2800. Okay. S, how many units you are selling? 450. At what price? 10. So that means 4500. ये भी आसान। Now let's move on to P1 and P2 और Q1 and Q2. अब इसमें थोड़ा सा मसला है। अब जब मैं P1 और Q1 को प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक, तो इस वाले को तो नहीं बेच रहा 600, आई एम एक्चुअली सेलिंग दिस, और इसमें से कितने बेच रहा हूँ? 600 400 मैंने बनाए हैं। व्हाट आई एम एक्चुअली सेलिंग? 600 and 300। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। 600 और 300 ये मैं सेल कर रहा हूँ। अब ये 600 और 300 जो मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये मैं कितने सेल कर रहा हूँ? 600 सेल कर रहा हूँ। किस रेट पे सेल कर रहा हूँ? 10। So when I'm selling 600 at 10, so I'm getting a revenue of 6,000. And 300, I'm not selling 400. I'm not selling 400. मैं कितने बेच रहा हूँ? 300. तो जब मैं 300 बेच रहा हूँ 20 के ऊपर, so that means I'm selling 6,000. 6,000. This is giving me my sales दे रहा है ना, सेल्स वैल्यू। मैंने बनाए कितने? 600 and 400. When we were talking about this process or this method, हमने कहा कि हम लोग कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू, मैंने जितने यूनिट बनाए हैं उसकी कीमत क्या है? मैंने जितने यूनिट बनाए हैं उसकी कीमत क्या है? हमने ये तो नहीं कहा था कि जितने यूनिट सेल किए उसकी कीमत क्या है, ठीक है? जितने यूनिट बनाए हैं उसकी कीमत क्या है? बनाए मैंने कितने हैं? 4। तो अब अगर ये कुछ कॉस्ट है which I need to apportion, so this cost should be apportioned on the basis of the units which are made. अब अगर आप इसमें से कोई भी ना बेचें तो आप कहेंगे इसकी कॉस्ट 0 होगी। So it should be on the basis of units manufactured, not on the basis of units sold. एक आध चीज क्लियर होगी। So that means it is 400 into 20 which equals 8,000। ये भी क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया जी? ऊपर वाले दोनों यूनिट्स सोल्ड, हमने आर और एस हमने क्या लिया है? यूनिट सोल्ड लिया है। हमने यूनिट सोल्ड, ये किसने यूनिट सोल्ड लिया है? मैंने लिया। बहुत बड़ी बात। ओके, मैं आपको कह रहा हूँ it will be units manufactured, not units sold. So let's go back and make a calculation. So how many units have you manufactured? 5 into 7 would be 3,500 and 6 into 10 would be 6,000. Sorry for that class. ठीक है, जज्बात में कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था। Okay, so it is actually, आपको मैंने समझाया, it is actually units manufactured and not units sold. Clear so far? Yes. यहाँ तक clear है?
अब एक और मसला है। अब मसला ये कि ये जो है ये तो मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया, इसके ऊपर फर्दर कॉस्ट लग रही है? नहीं। इसके ऊपर फर्दर कॉस्ट लगेगी? यस। अच्छा, अब जो कॉस्ट मैंने इससे पहले लगाई, इस फर्दर से पहले, वो कितनी है? 16,000 है। वो 16,000 की कॉस्ट किस किस पर लगी? सब पे। ठीक है, वो सब पे लगी, तो वो कॉस्ट सब की कॉस्ट में जानी चाहिए। और वो जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो सिर्फ 2 पे लगी, तो वो सिर्फ उन 2 पर जानी चाहिए। गॉट दिस आइडिया? ठीक है, एक कॉस्ट थी जो सब पर लगी PQRS पे, वो PQRS पे चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो और कॉस्ट है वो सिर्फ P और Q पे लगी, तो वो सिर्फ P और Q पे जाएगी, उसको RS के ऊपर उसको एलोकेट करने की जरूरत नहीं। ओके, सो लेट्स गो टू 16,000। 16,000 को मैंने सेल्स वैल्यू की बेसिस पे करना है। सेल्स वैल्यू आपने सबकी फाइंड आउट कर दी, सबकी फाइंड आउट कर दी। अब इसको फर्दर हम लोग किस तरह सॉल्व करते होते हैं? अपोर्शन करते हैं। हाउ डू वी एक्चुअली अपोर्शन इट? add the total. So what is the total? Add the total. कितना? कितना आएगा? 23,500। कैलकुलेशन चेक करते हैं क्लास। क्लास साथ साथ कैलकुलेशन चेक करते रहें। सही है? ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, लॉक कर दो। आपको थोड़ी देर पहले इस मेथड के बारे में क्या बताया? क्या कहा था? सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। आपने माइनस किए? ओके, आज सब करो सर। ओके, सेल्स वैल्यू ये आ रही है, इसके ऊपर फर्दर कॉस्ट कितनी इनकम होती है? So this would be 5,000, 8,000 minus 2,500. This would be जी 5,500. So now your total cost is 20,000. 9,500 हो गए। 10, 20, 20। Kindly use calculators class, गलती ना हो। इससे पहले जो आपने किया था वो कौन सा मेथड था? सेल्स वाला, सेल्स वाला। तो इसका मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने माइनस नहीं किया था, सो एक्चुअली यू वर डूइंग दी सेल्स वैल्यू वाला। ये है सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वाला मेथड। ये दूसरा तीसरा मेथड है जो होता है। ठीक है, आपने इसको दूसरे मेथड के सेम प्रोसेस से कर दिया था। दिस इज हाउ इट शुड बी डन। नाउ कैन यू अपोर्शन कॉस्ट? कैन यू अपोर्शन कॉस्ट नाउ? इसकी कॉस्ट कितनी है? आउट ऑफ अ टोटल ऑफ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, वो कॉस्ट 16,000। लेट्स डू इट। 3,500 divided by 20,000 multiplied by 16,000 would give you the cost which should be apportioned to product R. जी सर, ये 16,000 की इक्वल तो नहीं है? नहीं समझे, दोबारा बोलिए। नसीब दोबारा बोलिए, मुझे नहीं समझे। 3,000 to equal 16,000 is not equal to 20,000. 16,000 is not equal to 20,000। तो हमने तो ये नहीं कहा, देखें नसीर हमने ये कहा, नसीर हमने ये कहा, हमने ये कहा ये 2 और 3, ये 3 प्लॉट्स बनाएंगे। ठीक है, इन तीनों की कीमत बनती है 20,000। मैंने जितनी बनाई उसकी कीमत बनती है 23,500, 23,500 बनती है। और इसके ऊपर जो खर्चा मैंने किया है वो 16,000 है। आप कहते हैं अब ये पता नहीं है 16,000 इस पे कितना कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना, इस पे कितना।
इस 16,000 को इसके ऊपर डिवाइड करना है। मैं कहता हूं अच्छा, पहला तरीका पढ़ा कि इसका वजन करें, इसका वजन करें, इसका वजन करें, जितने जितने वजन आ रहे हैं उसके मुताबिक डिवाइड करते हैं, आसान तरीका, सही, उस तरीके से करते हैं। सेकंड तरीका पढ़ा कि इनकी सेल्स वैल्यू के हिसाब से करें। इनकी सेल्स वैल्यू के हिसाब से आ रहे हैं 23,500, वो भी कर दिया। थर्ड मेथड, सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग, इसमें से ये फाइनल है, इसको हटा दें। इस दो के ऊपर फर्दर प्रोसेस भी किया है, उसके ऊपर फर्दर कॉस्ट भी लगी है 3,500, तो मैं कहता हूं 23,500 में से 3.5 भी हटा दें, 20,000 लगी है, 20,000 इसके ऊपर आपकी सेल्स वैल्यू आ रही है। असल में 23,500 सेल्स वैल्यू है, लेकिन 23,500 सेल्स वैल्यू करने के लिए आपको 3,500 की कॉस्ट और लगानी है, तो वो 3,500 हटा दें, तो बाकी कितने बच गए? 20,000। 20,000 इसकी सेल्स वैल्यू है। अब वो कॉस्ट कितनी है जो उसके ऊपर डिवाइड करनी है? 16,000। तो इस 16,000 को इस चारों पर डिवाइड कर दें, लेकिन किस हिसाब से? जितनी जितनी एक हर एक की अलग अलग सेल्स वैल्यू है। ये टोटल सेल्स वैल्यू, ये इसकी सेल्स वैल्यू। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि जो अगला प्रोडक्ट है उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है? 6,000 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 20,000, और फिर 16,000 में इसका पोर्शन इसको दे दें। फिर इधर आ जाए, फिर मैं कहूंगा इसकी सेल्स वैल्यू कितनी है? 5,000, असल में 6,000 है, लेकिन 1,000 से ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा भी आता है, तो वो हटा दें। 5,000 डिवाइड बाय टोटल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो टोटल खर्चा आता है। इसके ऊपर 5,500 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 16,000। अब इस सब की कॉस्ट मुझे पता चल गई कि इस सब की कॉस्ट कितनी है। मैंने कॉस्ट को डिवाइड किया जी, कॉस्ट को अपॉर्शन करें जी। व्हाट इज द अमाउंट? गिव मी द अमाउंट। 2,800. 4,800 for the first one, No sir, 2800. Sir, R 2800. R 2,800, Yes sir. S 4,800. S 4,800, और P2 4,000. P2 4,800, Yes sir. R2 sorry Q2 4,400. 4,400. Got the idea class? 4,000, 4,400, sorry 4,400, 4,800, 4,800 and 7,000. मुझे नहीं पता, आप नहीं किए। ये 4,000 ये ऊपर वाला। आसान तरीका आपको सिखा रहा हूं क्लास, आसान तरीका। इस सब को टोटल करें, अगर ये 16,000 टोटल आ रहा है इसका मतलब सही है, करें। सर नीचे वाला 4,400. नीचे वाला तो फिर ये कितना है? सर ऊपर 4,000. ये 4,000 है, ये 44। टोटल करें, अगर 16,000 आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। बस आसान है, सही है. इजी जी। सही है. आ रहा है, इसका मतलब सही है। मैंने 16,000 को अपोर्शन कर दिया, ठीक। अब आपको पता है कि कॉस्ट इसकी 4,000 इसकी कॉस्ट 4,000। नो, फर्दर प्रोसेसिंग वाला तो इसमें नहीं है। ये 4,000 जो है ये तो 16 में से है, 16 में 4 है, और इसके ऊपर फर्दर कितना प्रोसेस हो रहा है? 1,000। तो प्रोडक्ट P2 की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 5,000। और इसकी सेल्स वैल्यू कितनी है? 6,000। तो ये प्रॉफिट कितना कमा के दे रहा है? ओके, यहां पे आ जाए। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 4,400 प्लस 2,500, दैट मींस 6,900, और इसकी सेल्स कितनी है? 8,000 माइनस 6,900, 1100। लेकिन अच्छा छोड़, ये भी सही है। ये जो आखिरी काम किया ये सही है? नहीं, क्यों? मैं बताऊं जी, सही है कि नहीं? आप मुझे बताएं, नहीं क्यों नहीं? फिर एक गलती करते हैं। सर R2 की ये क्या सेल नहीं है. R2? ये उसकी सेल नहीं है. ये R2 की सेल नहीं. नहीं। R2 की सेल कितनी? 6,000. 300 सेल। 300. तो जो 100 है वो R2 के 100 जो है
सॉरी Q2 के, Q2 के जो 100 है वो हमने नहीं बेचे, तो वो क्या है? इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब ये जो आपने फाइंड आउट किया है ये एक्चुअली गलत है। यहां पर आपको कोई और फिगर लिखनी है जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है? अब क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी कितनी है, अब उसको चेक करें। चलिए पहले इन दो को कर लेते हैं, फिर इसकी बनाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बिकॉज़ देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो याद रखें इसमें आप अब देखें प्रॉब्लम्स जहां पे आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम के अंदर। पहला मेथड कौन सा है? सेल्स वैल्यू वाज रिलेटिवली इजी। सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज अ बिट कंफ्यूजिंग कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करना होता है। एग्जाम में हमेशा वो चीज आती है जो थोड़ी सी ट्रिकी हो, ठीक है? ओके, एक चीज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भूलना नहीं। दूसरी, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी तो फिर आप जल्दी में कहेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के इसमें प्लस कर दो, उसको माइनस कर दो, बस ये इसका प्रॉफिट आ गया। नहीं, इट्स नॉट द ट्रू प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 जो अब तक नहीं बिका, तो उसका सेल्स आप कैसे रियलाइज कर रहे हैं कि इसका सेल्स ये हो गया? तो इसका मतलब ये कि इसकी सेल्स, ये जो सेल्स आप कह रहे हैं कि ये इसकी सेल्स नहीं है, ये इसकी सेलिंग वैल्यू है 400 यूनिट की। सेल्स असल में आपने की है 300 यूनिट की, तो 300 यूनिट की सेल की, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 20, 6000 सेल होगा। 6000 सेल होगा और उसके मुताबिक 6000 के मुताबिक ओके 6000 आपने इसका सेल किया, और अगर इसकी कॉस्ट मैं निकालूंगा तो इसको अपोर्शन कॉस्ट हुई है ये कॉस्ट, ठीक है? 4400 हुई है कॉस्ट। ये 4400 कितने यूनिट्स के लिए कॉस्ट अपोर्शन की? 400 यूनिट्स के लिए अपोर्शन। इसके ऊपर फर्दर मैंने कितने पैसे लगाए? 2500। ये भी 400 यूनिट्स की होगी, ये 6900 फुल 400 यूनिट्स की, तो पर यूनिट कितनी होगी? करें 17.25। तो जो यूनिट्स आपने बेचे वो कितने यूनिट्स बेचे? 300 बेचे, तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी? 300। 5175। That means you made a profit of 5250। एक और करो। This figure is right, 5250। so this figure is wrong. ये गलत है। 5250। So that means your profit would be 5175। आज आप लोगों ने वाकई रोजा रखा। This is only the 10th fast. Yes। We have 20 more to go. एग्जाम में हालत खराब। और एग्जाम में क्या करेंगे आप? पेपर थोड़ा सा या चेकिंग आसान कर दिया, पेपर आसान है। तो पेपर में बहुत मसला बच जाएगा। पेपर would be tricky. I'm telling you, paper would be tricky. आसान है, it's not difficult. कोई एडवांस चीज नहीं है, सिंपल कॉस्ट सेलिंग प्राइस, सिंपल। जैसे क्वेश्चन आपके स्लाइड्स में होते हैं उसका वो बहुत सिंपल है, बस उसका डिफिकल्टी लेवल इज वेरी लो। आप लोग ये काम करें, go to a scholar, get a फतवा के एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इजाजत, ठीक है? उस दिन रोजा ना रखें और आए यहाँ पर वापस। रोजे का बरना कैसा खबर है? रसीश का बरना तो क्वेश्चन को उम्दा का क्वेश्चन भी। ओके, लेट्स सी। अच्छा पहले इसको सही करते हैं। 5175 प्रॉफिट 825। So that means there is a closing inventory involved. तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ एग्जाम के what is the amount of closing? So the amount of closing inventory would be 6900 divided by 400 multiply by 100. Closing is 100. Okay. So closing inventory is equal to
जो इन दोनों का डिफरेंस नहीं, इनका डिफरेंस 17 जो डिफरेंस आएगा 1725 क्या लिखेंगे सही है सर इसका पर यूनिट कॉस्ट मुझे बता दें 17.25 17.25 17.25 का निकाला 100 इक्वल्स 1725 ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे फर्दर पूछूं, अच्छा इन दो को तो फाइंड आउट करने हैं, इन दो को फाइंड आउट करने 3500 minus 2800, ये तो सिंपल, these are simple। 700 48 1200। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आउट ऑफ माय टोटल सेल्स इनकी परसेंटेज कितनी है, यू कैन फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं आउट ऑफ टोटल सेल्स इसकी परसेंटेज कितनी है, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। particular divided by ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन याद है सबको, जीपी मार्जिन, व्हाट वाज द फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय, तो ये आपसे कह रहा हूं, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइड बाय सेल्स, परसेंटेज आ जाएगा। और अगर मैं कहूं टोटल प्रॉफिट में से परसेंटेज, क्या फॉर्मूला होगा, gross profit divided by total ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ वन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट, डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। गलती नहीं करनी, ठीक है। चीजें माइट गेट अ बिट कंफ्यूजिंग बट दे आर इजी। गौर से पढ़ें कि क्या चीज मांगी जा रही है, उसको वही चीज प्रोड्यूस करती है। इट्स ऑल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इट्स ऑल सेम ओल्ड स्टोरी जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है बस, और अगर एक भी गलत कर दी तो सब प्रोग्राम जारी नहीं रहेगा। जी first formula is for sales percentage सेल्स परसेंट। and the second one is for So out of the total profit of the company, what is the margin of one product? ठीक है। सर ये सेकंड है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आर ने कितने पैसे आपको कमा के दिए और कंपनी टोटल कितने पैसे कमाती है, सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ वन प्रोडक्ट आर लेट्स से 700 डिवाइडेड बाय द टोटल प्रॉफिट व्हिच द कंपनी इज मेकिंग। टोटल प्रॉफिट इज 700 प्लस 1200, ये 1000, और इसका कितना है 820, ठीक है। गॉट द आइडिया। सर ये 700 सर ये एक वक्त में प्रॉफिट प्रोडक्ट मार्जिन, कि उस प्रोडक्ट का मार्जिन, ठीक है। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड दिस इज द प्रोडक्ट मार्जिन। जी फजल भाई, सर ये आर के लिए 700 प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, 700 नहीं है, क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इसकी सेल तो 400 यूनिट है, तो इस हिसाब से अगर 300 पेपर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिक्कत तो है ना। फजल लाइन के आपने क्या कर दिया, सर ये इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओके ये भी गलत है, इसको इसलिए करेंगे। अरे इसको भी सही है। अच्छा अब इस तरह करते हैं, जहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी ना उसको गौर से देखना, इसका मतलब वहां पे गलती का चांस है, हम जल्दी में जाते हैं वहां पे गलती कर रहे हैं। दो जगह पे क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों पे हम लोग जल्दी में चले गए फिर वापस आए हमने उसको सही, तो जहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वहां पे गलती होगी आपसे, तो इसका मतलब जहां पे गलती होगी वो एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली चीजों को गौर से देखें। नाउ ओवर हियर द यूनिट्स सोल्ड आर एक्चुअली 400, सो दैट मींस ये जो आपने किया, ठीक है, 3500 ये आ गया, ये इसका था आपके पास sale value. सेल्स वैल्यू था, और इसकी कॉस्ट आपके पास कितनी आई, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, जो कॉस्ट आपने अपोर्शन की, कॉस्ट जब आप अपोर्शन करेंगे तो आपने इसी सेल्स वैल्यू के बेसिस पे की, व्हिच इज इक्वल टू 2800
तो ये तो सही है, 500 ये तो सही है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया वो गलत था। ठीक है, ये सही है, इसका प्रॉफिट जो आपने फाइंड आउट किया वो गलत था, वो इसी तरीके से करना है जिस तरीके से किया, which means you have sold actually 400 units at 7, so you have sold 2800 units. yes sir So you're selling for this product, your sales amount for this product is 2800. Now what is the cost for this product? The cost for this product is 2800 is for 500 units. So 2800 divided by 500, ये आ जाएगा per unit. Multiply by how many units you have sold? 400. So this will be the cost for 2240. So your profit for this product is जो भी आएगा, ठीक है? yes sir closing for थैंक यू। तो फिर तो इस तरह तो एस का भी फिर आपने ये अमाउंट जो है डाल देना, यस सर, ये भी गलत एस को भी सही करें फिर, और फिर इसका सिर्फ सही, क्योंकि ये जितने यूनिट्स उतने सो, ठीक है? तो इस अमाउंट को भी यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करें। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? 2800 minus 2240, 560. 560. Now let's talk about this one. Over here the sales are 440, multiply by 10, 4500, ठीक? Cost is 4800 divided by 600, multiply by 450. This is the cost. यहाँ पे लिख देंगे, माइनस करेंगे इसका प्रॉफिट। थोड़ा सा प्रोग्राम कर दूंगा, ठीक है? तो अभी तो हमने बाय प्रोडक्ट भी इशू किया, बाय प्रोडक्ट भी करना है। ओके, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज इन्वॉल्व करते हैं। लेट्स इन्वॉल्व वन थिंग फर्दर। यहाँ तक क्लियर है? इसका आंसर यहाँ पे मुझे बता दें ताकि इसको कर दें। इसका वैल्यू किसका? 360 दिस इज 3600, so this would be 900. ये आएगा, चेक कर लो, 900 ही आएगा, ठीक है? ये हो गया। अब एक और तरीका है यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर। देखिए, पहला था फिजिकल मशीन, ठीक है? उसके बाद था सेल्स वैल्यू, उसके बाद था सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अभी नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके बाद वेटेड एवरेज। नंबर ऑफ यूनिट्स जी सर, इस केस में आपने क्या किया कि 1000 आ जाए ये P2 में? बस मैंने तो कर दिया उसको। अब क्या बताएं क्या किया? Okay, let's find out. So this is actually the cost for these units. And in order to find out the total cost for P2, we need to add the apportion cost with the further processing cost. So what is the further processing cost for P2? 1000. So we add this 1000 to it, and this gives me 5000. Yes, Equal to 1000, फिर आपने दोबारा ये equal to 1000 क्या लिखा है? ये किसने लिखा है? ग्रॉस क्यों लिखा है? प्रॉफिट मार्जिन है ये किसने लिखा है? सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, सो 5000 इज माय कॉस्ट एंड माय सेल्स इज 6000, सो दिस इज माय प्रॉफिट। क्लियर सो फार? सर ये ऊपर 900 पीसेस ऊपर 900 किधर लिखा है? सर ये तो सिंपल है, इसमें कॉस्ट सेल्स में से कॉस्ट को माइनस किया 900 प्रॉफिट ऑन एस के ऊपर मैंने कितने पैसे कमाए? 900, ठीक है? एस का भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक का भी मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक, ये सेम कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 150, so 4800 multiply by 600 multiply by 150 equals 12. ठीक है? इसका क्लोजिंग स्टॉक है, इसका क्लोजिंग स्टॉक है, इसका क्लोजिंग स्टॉक है। जिसका क्लोजिंग इन्वेंटरी है उसकी वैल्यूएशन मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक? क्लियर सो फार? अगले मेथड पे जाऊं? अगर ये क्लियर है तो अगले मेथड पे जाऊं।
क्लास वी नीड टू स्पीड अप अ लिटिल बिट। मैंने बाय प्लॉट्स भी आज खत्म करने थे अकॉर्डिंग टू द प्लान। जी क्लियर है? जाओ आगे। 5 मिनट ब्रेक। नमाज 2 o'clock क्यों नहीं पढ़ते यार? जमात के साथ तो 5 मिनट में जमात हो जाएगी। So those who are ready for Jamaat can go. I am not ready for Jamaat, so I will pray at 2. और जो बिल्कुल ready है, जिनके वुज़ू किया हुआ है, they can go. बाकी we will start after 2 minutes. Possible. 2 मिनट की ब्रेक लेंगे। Starting है जी। Q2 में हमने 6,000 कहाँ पे माइनस? ये 6,000 इस Q2 की sales की unit sold 300 into 20. So this is actually the selling price. Sales minus cost equals profit. Same is the case over here. Sales minus cost equals profit. Sales minus cost equals profit. This is closing inventory. इसकी closing inventory कोई नहीं है. इसकी closing inventory कोई नहीं है. इसकी closing inventory. ठीक है? साथ लिख लें ताकि आप बताओ। इधर closing लिखा है, इधर closing लिख दिया है. ये सर इसकी 700 profit लिख दिया. Sales minus cost. Sales minus cost. बस सही है। यहाँ पे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ठीक है। आर की भी से क्लोजिंग इन्वेंटरी। किसकी भी क्लोजिंग इन्वेंटरी? आर आर की क्लोजिंग इन्वेंटरी है। Yes sir. ये 1200. चलो निकालिए। ये तो इसकी ये एस की है। ये सर आर की 700 है। आर की कई कैलकुलेट की है इधर? 560. 560 Closing is sir. Closing inventory of R is 100. The cost is how much? Cost कितनी थी? Sir 5.6. ये क्या ना यार, ये क्या है? 2,800 Sir 560. divide by 500 multiply by 100. ये आएगा? यस सर। चेक करें, यही है ना? अमाउंट इज 560। सारी चीजें लिख दी हैं, स्कैटर्ड हैं। अगर पिक्चर लेते हैं या इसको वीडियो में ले आए ताकि ये सारा कैप्चर हो, ठीक है? या इसकी पिक्चर ले लें या इसको वीडियो में ले आए। इसको या तो वीडियो में ले आए और टेक द पिक्चर। ये सर दोबारा एक्सप्लेन करें सर आप। ओके, इसको वाइट करने को ज्यादा है। और ये तो बहुत नीचे चला गया। ओके, सही है। अच्छा, कौन सी चीज सलमान? सर ये जो लास्ट में आपने की ये इससे मुझे फजल लाइन ने कहा कि सर देखिए इसकी भी क्लोजिंग इन्वेंटरी है 600 माइनस 450, 150 यूनिट्स इसकी भी बाकी है, ठीक है? तो इसके 150 यूनिट्स बाकी हैं तो वो ये आ गया। फिर इसने कहा कि सर इसमें भी 100 यूनिट्स बाकी हैं, 500 माइनस 400, तो इसके 100 यूनिट्स ये आ गए। ये क्लोजिंग इन्वेंटरी इसकी, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी इसकी, और ये क्लोजिंग इन्वेंटरी इसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है। 600 प्रोड्यूस, 600 सोल्ड, बस, ठीक है? गॉट इट? So now next method is units method. अब units method में आप लोग क्या कहते हैं कि कितने units produced, कितने units produced। अब units कितने कितने produced हुए, units कितने कितने produced, PQRS, take the same data, PQRS units कितने कितने, 600 of what, P, और यही फर्दर आगे भी प्रोड्यूस हुए ना, Q R S टोटल नहीं, सेम सवाल है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे करो, सेम डेटा पर नंबर ऑफ यूनिट्स पे करो। ओके, सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स? 2100। कॉस्ट आपके पास कितनी है? कॉस्ट इज हाउ मच? कॉस्ट इज हाउ मच? क्लास कॉस्ट कितनी है? 16,000 जो आपने पोर्शन करनी है। सो 16,000 इसकी बेसिस पर, सो दैट मींस 600 डिवाइड बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 16,000, और इस तरह ये सब कर देंगे। इट्स इजी। टोटल शुड बी 16,000 ओवर हियर, दिस वन वुड बी 400 डिवाइड बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 16,000, दिस वन वुड बी 500 डिवाइड बाय 2100 multiply by 16,000. This one would be 600 divided by 2100 multiply by 16,000. बस ये हो गया। इसके बाद
इसके बाद ये तो ये हो गया ना। अब इसमें P1 पे फर्दर कॉस्ट भी तो लगी है ना, तो जो यहां पर आएगा प्लस वो फर्दर कॉस्ट कितनी है 1000। So the total cost for P1 would be, or P would be, ये वाली क्या है? What is this value? Sir, 4571. 4571 0.4 plus 1000 5000 5571 सही है? सही है? ओके नेक्स्ट Q 3047 3047 plus further processing cost of 2500 would be equal to 5547 for R and S it would be the same, इसमें कोई further processing cost नहीं है, so it would be 3809 3809 and last one 4571 all this should be equal to 16,000 check it. अगर आ गया तो ये सही किया आपने, अगर नहीं आया तो इसकी साथ को बदल दो। दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स। ये आप क्या वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं Yes. जी? क्लियर? 16,000 आ रहा है, पहले चेक कर लें 16,000 आ रहा है, फिर बताएं क्लियर है कि नहीं, फिर इसका प्रॉफिट फाइंड आउट। This is 16,000 without the addition. ऑफ कोर्स विदाउट द एडिशन ना। देखिए अपोर्शन कितना करना है, अपोर्शन तो ये 16,000 करना है, ये एलोकेट करना है, तो इसको एलोकेट कर दिया, और ये जो है तो आपको पता है कि इसी के ऊपर जाएंगे, ये कहीं और जा नहीं सकते, इसको ऐड कर जी। क्लियर? एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट 590 2 रुपीस, तो इसका मतलब कहीं पे आपने राउंडिंग की है, इसको 2 कर दे, और इसमें और कहां पे राउंडिंग की, So वो decimals में आ रही थी तो round इसको भी 2 कर दे, बस 16 कर, ठीक है? सही है? क्लियर? क्लियर क्लास? अब आगे चले जी। ये इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट कितनी है 5571 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 600 600। हाउ मेनी यूनिट्स वर सोल्ड 600 units 600 sold, so your sales would be 6000 6,000 sales 6,000 minus cost equals profit। तो बहुत सीखना सीख लिया थोड़ा सा। sales minus cost equals profit, 6,000 minus cost 5,571, so profit जी 49। Let's talk about this one now. Sales 20 into 6,000 की sales है 20 into 300, yes okay, minus cost, this is the cost for all the 400 units. I have sold 300 units, so I would need the cost of 300 units. How do you find it out? 5,547 divided by 600, sorry, divided by 400 multiply by 300, ये cost यहाँ पर 4160, so your profit is यहाँ पे जी, profit is 1740 class, what is the profit? 1740 40 yes 40, okay, next one 500 units बेचे कितने 400, 4 into 7 equals 28 minus, अब ये जो कॉस्ट है 3809, ये कितने यूनिट्स के लिए 500 की, आपने कितने का फाइंड आउट करना है 400 का, so this figure would come what is
जी 3047. 3047. So that did Salman Sir, वो 3809 है. 3800 divide by 500 multiply by 400. R है ना, R 500 सही है. लॉस है सलमान, लॉस है. 3040, yes sir. 3040 इसमें लॉस हो रहा है. श्योर. और इसमें कहीं पे लॉस नहीं आया. लेट मी क्रॉस चेक. कभी लॉस आया नहीं है. करें अमाउंट क्या आ रहा है. अमाउंट क्या आ रहा है. negative 440 4 240. 240 Yes, sir. 6 40. 240 240 is the loss. Loss. बस ठीक है लॉस. ये तो 1840 ये 1840 है और ये 429 है. लास्ट वन. आज बकियां बहुत हैं क्लास. वेरी सॉरी आज बहुत ज्यादा बकियां. ओके सो नाउ 4572 s divided by 600 multiplied by 450. This will be the cost. The sales price would be 450 into 10 4500. जी सर वो 3047 है सर वो कॉस्ट. ये 47 है. तो फिर प्रॉफिट भी फर्क हो जाएगा. सर प्रॉफिट दो आ रहा है. Then 3809 547. No, 3809. 3809. Sushi, which one? Okay, sorry. सर इसका लॉस तो 547 है. सर 240 तो नहीं आ सकता सर. वो मुझे नहीं पता, आपने मुझे फिगर बताया. मैं आपको तरीका बताया. Is this 3047? yes sir So then this would be 247. 247 7. Sorry, 7. सर इसकी सेल्स वैल्यू कितनी है सर? 25? Sales 2800. अच्छा 2800. Sorry, 28. ठीक है? Okay. 4500 minus this figure. 4572 divided by 600 multiplied by 440. 450. Sorry. This is the cost. 429 3,429. So now your profit is whatever is the profit. Right below. This will be the total profit. और फिर percentages आप find out कर सकते. ठीक है? तो ये आज का काम था. Today we have been very slow और बहुत काम आज रह गया है. I'm not sure why we have been a bit slow. जी, give me these figures. This figure and this figure. so 1071 1071 71 and total profit or loss for the organization. Thirty 93 3,090. G class, is this thing clear? Yes, sir. So we've done two methods today. We are left with weighted average, byproducts. दो चीजें रहेंगी. Weighted average, byproducts. Byproducts के अंदर फिर 4 methods हैं. So we need to speed up. नहीं सर मिड के बाद नहीं मिड में ये खत्म करते हैं यार. फिर इसका एक मेथड बाद में पढ़ेंगे तो सब खराब हो जाएगा. ठीक है, इसको खत्म करें. पॉज. थैंक यू क्लास.